کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لیں اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لیں اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج کے سبق کو مرکبات سے شروع کریں گے۔ ہم نے کل مرکبات کو چھویا تو تھا لیکن تختی نمبر 2 پہ ہم نہیں آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ آپ کے اسباق ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بعض احباب نے یوں کہا کہ مفردات کو تھوڑا تفصیل سے سمجھا دیا جائے تاکہ کچھ باریکیاں بھی سمجھ میں آ جائیں اور مفردات کی مشق بھی کرائی جائے تاکہ جو کمیاں ہیں کسی حد تک دور ہو سکیں اور ان کی نشاندہی بھی کرائی جائے، کیونکہ پورے قاعدے کا دار و مدار اور بلکہ قرآن کریم کی ادائیگی کا دار و مدار حروف مفردات پہ ہے۔ حروف مفردات صحیح ہوں گے تو قرآن کریم سے حروف کی غلطی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے کچھ باریکیاں بتائی جائیں گی۔ اب بعض حروف میں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کا ازالہ نہیں ہوتا، اس اعتبار سے ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم چھوٹے 2 بچوں کو بلا کر ایک اس طرح پڑھے کہ جو کمیاں لوگ کر کے پڑھتے ہیں بعض لوگ، اور ایک اس کی تصحیح کی کوشش کرے، پھر انشاءاللہ ہم مزید اس پہ اگر آج موقع ملے گا تو آج، نہیں تو پھر آنے والے سبق میں اس پہ تفصیلاً روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تو 2 طلبہ کو میں بلاتا ہوں۔ الف میں آخر فا میں آواز کو جاری رکھیں گے، جیسے الف با کو باریک پڑھیں گے، با کو پر نہیں پڑھا جائے گا، جیسے با۔ بھائی محترم، آپ با کو تا کو پر پڑھ رہے ہو، تا کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے تا۔ سا۔ بھائی محترم، سا کو سین جیسا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ سا کو ادا کرتے وقت زبان تھوڑی سی ثنایا علیہ سے باہر آئے گی، جیسے تا۔ جیم۔ بھائی محترم، جیم کو ادا کرتے وقت جیم کی آواز کو صاف کرنا ہے اور زبان کو تالوں کے ساتھ لگانا ہے، جیسے جیم۔ ہاں۔ جیم کو صاف پڑھے، جیم۔ درمیانی زبان درمیانی تالوں کے ساتھ لگائیں، جیم۔ او کو پر کرتے وقت ہونٹ گول نہ کریں، جیسے دال۔ دال کے اخیر لام میں قلقلہ نہ کریں، جیسے ذال۔ ذال کے اخیر لام میں قلقلہ نہ کریں، جیسے را میں صفت تقریر ہوگی اور را پر بھی ہوگی، جیسے زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، جیسے زا۔
سین کی آواز کو ناک میں نہیں لینا ہے. سین کی آواز کو ناک میں نہیں لینا ہے. جیسے سین. شین. شین کی آواز کو ناک میں نہیں لینا ہے اور اخیر نون میں قلقلہ نہیں کرنا ہے. جیسے شین میں صفت تفشی ہوگا. جیسے شین. سود. صوت کو پر کرتے وقت ہونٹ گول نہیں کرنی ہے. جیسے سود. دودھ. موت کو پر کرتے وقت ہونٹ گول نہیں ہوں گے. موت میں صفت استطالت پائی جاتی ہے. جیسے مود. کو پر کرتے وقت ہونٹ گول نہیں ہوں گے. جیسے بو. وود اور وہ میں فرق ہونا چاہیے. جیسے وہ. آئین کی آواز کو ناک میں نہیں لینا. جیسے آئین. غین کی آواز کو ناک میں نہیں لینا اور غین کو پر بھی پڑھنا ہے. جیسے اوئین. فا. فا ہونٹوں کی تری والے حصے سے ادا ہوگا. جیسے فا. قاف کو پر کرتے وقت ہونٹ گول نہیں کرنے ہیں اور فا اور قاف کے آخری فا کو تری والے حصے سے ادا کرنا ہے. جیسے فا. لام. لام میں ناک میں آواز نہیں لینی ہے. جیسے لام. نیم میں بھی ناک میں آواز نہیں لینی ہے. جیسے نیم. نون. نون میں ہونٹ مکمل گول کرنے ہیں اور آواز کو ناک میں نہیں لینا ہے. جیسے نون. واو. واو کو باریک پڑھنا ہے. جیسے واو. ہا. نہیں بلکہ اس کو ہا پڑھنا ہے. حمزہ. حمزہ کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ حمزہ. یا. یا کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ زبان کا درمیان اوپر کے تعلق کے ساتھ لگے گا. جیسے یا. پیارو، ایک بات کا خاص دھیان رکھنا ہے. چھوٹے بچے جو قاعدے کی ابتدا کرتے ہیں ان کی مشق کی ترتیب بنانی ہے. ایسا نہیں کہ سبق دے دیا اور بولا جاؤ یاد کرو. اس سے بچے کا وقت ضائع ہوگا، تصحیح نہیں ہوگی. اب ایک استاد پورا دن تو مشق کرا نہیں سکتا. ترتیب اس کی یہ رہے کہ کچھ دیر استاد خود مشق کروائے پورے درجے کو. اس کے بعد جو بچہ سبق میں آگے ہے، اور ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی سبق، کوئی بھی تختی جب تک پوری مکمل درست نہ ہو جائے سبق کو آگے نہ بڑھایا جائے. ابتدا میں وقت لگے گا لیکن آگے چل کر بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ. اب جو بچہ آگے پڑھ رہا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے مشق پہ لگایا جائے، وہ پورے درجے کو مشق کروائے. اس کے 5 فائدے ہیں. طلبہ کو مشق میں لگانے کے 5 فائدے. سب سے پہلے تو استاد خود مشق کروائے. بیچ میں کہیں غلطی ہو رہی ہو، جیسے ابھی طلبہ سے غلطی ہو رہی تھی بیچ میں، اس طرح جب کہیں غلطی ہو رہی ہو تو اس کو استاد خود درست کروائے. طالب علم جب مشق کروائے گا تو اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ طالب علم استاد کا معاون بن جائے گا. وہ معاون ہوگا، استاد کا کام ہو جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ طلبہ کو مشق کرنے کا زیادہ وقت ملے گا.
उस्ताद कितनी देर मशक कराता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। दिन में सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी मशक तो नहीं करवा सकता। तो इससे यह हो जाएगा कि तलबा को मशक का ज्यादा फायदा हो जाएगा। और तीसरा फायदा यह होगा कि जो तालिब इल्म मशक करवा रहा है वो खुद पुख्ता होगा। हमेशा बड़े कुर्रा हजरात भी यौमिया मशक करते हैं। अगर मशक छूट जाती है तो कुरान करीम की अदायगी में फर्क आ जाता है। क्या खूब कहा किसी ने कि मुजव्विद और मुरत्तिल जब के हो जाए न हर कारी, सही कैसे पढ़ेगा वो किताबे लम यजल बारी। तो पांचवा फायदा यह होगा कि तालिब इल्म जो है वो गलती पकड़ना सीखेगा और उसको पढ़ाने का ढंग आएगा। इस एतबार से तलबा को मश्क के लिए लगाया जाए, इसका खास ख्याल रखा जाए। अब हम हुरूफ को एक तरतीब से लेंगे, जितने भी हुरूफ हो जाएंगे आज के सबक में उसको हम तरतीब से लेंगे। आप गौर से सुनते रहें और देखते भी रहें। बोर्ड पे इसलिए लिखवाया जा रहा है ताकि आपको भी आसानी रहे। हम मुरक्कबात में हुरूफ को लिखेंगे, उसमें बात समझने में आसानी होगी। ये क्या है? अलिफ। क्या है? इसमें ये ध्यान रहे कि इसमें 3 हरूफ हैं। अगर इसको मुरक्कबात में लिखें तो कितने हरूफ हैं? 3 हरूफ हैं। तीनों हरूफ बारीक हैं। कैसे हैं? बारीक हैं। एक भी हर्फ इसमें पूर्ण नहीं है। जब जुमले के अंदर, कलिमे के अंदर कोई हर्फ पूर्ण आता है तो अक्सर तलबा से ये गलती हो जाती है कि किसी हर्फ को पूर्ण करने के लिए साथ वाला बारीक हर्फ भी पूर्ण हो जाता है, या किसी हर्फ को बारीक करने के लिए पूर्ण हर्फ भी बारीक हो जाता है। उसका ख्याल रखना होता है। लेकिन अलिफ में तीनों हरूफ कैसे हैं? बारीक हैं। और फा में मैंने कल आपको बताया था कि थोड़ी देर आवाज जारी रहेगी। और फा का मखरज ये है कि सनाया उलिया का किनारा और नीचे के होंठ का पेट, ना कि खुश्की। अब आप अलिफ को अदा करो। अलिफ, हाँ, अलिफ में ऐन की आवाज नहीं आनी चाहिए, हमजा है शुरू में, अलिफ नहीं बल्कि अलिफ। समझ में आई बात? उसके बाद हम अदा करेंगे बा। क्या अदा करेंगे? बा। बा पे जबर है, उसके बाद क्या है? अलिफ है। तो अलिफ से पहले जबर हो तो क्या होता है? अलिफ मद्दा। तो गोया बा को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे तकरीबन। दूसरा क्या करेंगे? इसको बारीक पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। अब पुर तो नहीं करेंगे, लेकिन बारीक पढ़ने में भी एक गलती होती है। वो क्या होती है कि एक बात का खास ख्याल रखें, मैं अपनी बात को भूल जाऊंगा। इब्तिदा में तलबा को तकल्लुफ कराया जाता है। पुर करने में तकल्लुफ, बारीक करने में तकल्लुफ, मद करने में तकल्लुफ, गुन्ना करने में तकल्लुफ, इख्फा करने में तकल्लुफ, हर कायदे में तकल्लुफ कराया जाता है। क्यों? ताकि बाद में वो अपनी असली हालत पे आ जाए। कई मर्तबा देखा, एक हाफिज को अच्छा तैयार करो और पूरे पूरे पारे में उसकी एक भी गुन्ने की गलती नहीं होती, एक भी इख्फा की गलती नहीं होती, लेकिन तरावीह में जब वो जाता है और उसके मुक्तदियों में से कोई मुलाजिम है, कोई दुकान पे था, और हाफिज साहब थोड़ा जल्दी करना, तो उसका गुन्ना भी जाता है, इख्फा भी जाता है, मद भी जाते हैं। तो हम इब्तिदा में थोड़ा सा तकल्लुफ इसलिए कराते हैं ताकि बाद में तालिब इल्म अपनी असली हालत पे आ जाए। लेकिन इसमें तकल्लुफ में भी बाज चीजों से बचना है। जैसे हमने पढ़ा बै, क्या पढ़ा? इसको अगर हम बै पढ़ देंगे, क्या पढ़ देंगे? बै, तो ये इमाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे बचना है। इस तरह के बारीक से बचना है जिसमें इमाला हो जाए। इमाला किसको कहते हैं? जबर को जेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ झुकाने को इमाला कहते हैं। वो इमाला की भी आगे तफसील आएगी इंशाल्लाह, आपको वो भी पढ़ाएंगे। उससे बचना है। इसी तरह ता है, वो भी बारीक है। कैसी है?
ता है वो भी बारीक है, कैसी है? बारीक है। सा भी बारीक है, लेकिन सा में और जाल में थोड़ी सी जुबान को बाहर निकालना है, सना उलिया के साथ से थोड़ा सा सा। अब जीम को देखें, जीम में अक्सर तलबा जो है वो दीम पढ़ते थे, दाल की आवाज पढ़ते हैं। दाल जुबान की नोक से अदा होती है और जीम जुबान का बीच और तालू का बीच, दरमियानी जुबान दरमियानी तालू लगती है, तो जीम शीन और याए गैर मद्दा अदा होते हैं। तो जीम को थोड़ा सख्ती से भी पढ़ना है और क्या करना है, जीम को कि दरमियानी जुबान से अदा करना है। जीम 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 जीम। अब उसके बाद आई हा, क्या है? हा, ये बारीक है हा। अब पूर्ण हरूफ में से पहला हर्फ आने लगा है, वो है खो। क्या है? पूर्ण हरूफ में पहला हर्फ खो। जुबान की जड़ ऊपर उठेगी, होंठ गोल। इसी खौ पे पेश आ जाए तो हम होंठों को गोल करेंगे। इसी खौ के बाद वाव आ जाए, वाव मद्दा होता हो तो उसमें हम होंठ गोल करेंगे, लेकिन खौ कहते हुए होंठ गोल नहीं होंगे। तो पूर्ण हरूफ में पहला हर्फ है खो। क्या है? अब उसके बाद है दाल। क्या है? अब ये तीनों हर्फ जो हैं इसमें बारीक हैं। कैसे हैं? दाल भी बारीक है, अलिफ भी बारीक है, इसलिए कि बारीक हर्फ के बाद आया। लाम भी बारीक है, लाम भी बारीक है। अब तुम कहोगे बारीक कहां है? मुश्तरक है। अलिफ लाम और रा कैसे हैं? मुश्तरक हैं, लेकिन यहां बारीक होंगे। यहां कैसे होंगे? बारीक होंगे। एक चीज रह गई कि मैंने आपको बताया था, अलिफ का कायदा भी बताया था, लाम का कायदा भी बताया था। बाज अहबाब ने कहा जी रा का कायदा नहीं बताया। मैंने रा का कायदा इसलिए नहीं बताया था कि रा के कवायद लंबे हैं और वो आगे सबक में आ जाएंगे, लेकिन चलो याद दहानी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि रा के 3 हाल हैं। कितने हाल हैं? एक है राय मुतहर्रिका, एक है राय मुशद्ददा, एक है राय साकिना। राय मुशद्ददा जो है वो राय मुतहर्रिका के हुक्म में है। जैसी मुतहर्रिक रा पढ़ी जाएगी वैसी मुशद्दद पढ़ी जाएगी। अलबत्ता तशदीद की दोनों आवाजें अगर बारीक है दूसरी आवाज के ताबे होगी, दूसरी बारीक है तो बारीक होगी, दूसरी आवाज पुर है तो पुर होगी। रा के ऊपर जबर होगा तो रा पुर होगी। कैसी होगी? दोस्तों कहां है? रा के ऊपर जबर होगा तो रा कैसी होगी? पुर होगी। रा पे पेश है तो रा कैसी होगी? रा के नीचे जेर है तो रा कैसी होगी? बारीक होगी। अब ये तीनों तरीके आ गए। अब अगर मुशद्दद है तो तब भी वही बात है, नहीं है मुशद्दद तो तब भी वही बात है। समझ में आई बात? अब इसके बाद है कि रा साकिन है। रा साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पे जबर हो तो रा पुर होगी। उससे पहले वाले हर्फ पे जबर हो तो रा, उससे पहले वाले हर्फ पे पेश हो तब भी रा पुर होगी। रा साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है, और तीसरे हर्फ पे जबर हो तो रा पुर होगी, और तीसरे हर्फ पे पेश हो तो रा पुर होगी। अब रा साकिन है, उससे पहले जेर असली है, कसरा असली है, और उसके बाद हुरूफ मुस्तालिया के 7 हरूफ में से कोई हर्फ नहीं है तो रा बारीक होगी। रा साकिन है, उससे पहले जेर दूसरे कलमे में है तो रा पुर होगी। रा साकिन है, उससे पहले जेर आरजी है तब भी रा पुर होगी। रा साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है तब भी रा बारीक होगी।
اور रा साकिन से पहले या साकिना हो तो रा बारीक होगी। आज का ये सबक इतना रहा, तो इंशाअल्लाह बकिया इससे आगे। एक बात जहन में रखें, पहली तख्ती जब हो जाए यानी हुरूफे मुफरदात जब हो जाए, तब बच्चे को कुरान करीम में से इजरा करवाना है। यानी हर तख्ती होने के बाद पहली तख्तियों का इजरा करवाना है। और जब हुरूफ मुफरदात हो जाए तो कुरान करीम कहीं से भी खोलकर इजरा करवाना है। अब आप कहेंगे कि यार अलिफ बा ता पढ़ा है अभी, इसका इजरा क्या करवाना है? इसका इजरा इस तरह करवाना है कि किसी हर्फ पे उंगली रख के बच्चे से पूछना है, वो बताएगा ये पुर हर्फ में से है, ये मुश्तरक हुरूफ में से है, ये बारीक हुरूफ में से है। ये तीन बड़ी बातें हैं इब्तिदा में सिफात और मखारिज के एतबार से। अगर ये तीनों चीजें उसने बतानी शुरू कर ली तो समझ लो कि पहली तख्ती में काफी हद तक बच्चा कामयाब हो गया। इसका ख्याल रखा जाए, बाकी इंशाअल्लाह का